That's why it's all about investment and growth in life. Unless you invest your talent and you invest your life to someone, you will never have growth. जो मेहनत करते हैं, जो prosperous होता है, God is also happy with them. God is not happy with the lazy people. इसलिए पॉल बोला है, in the family, don't give food to the lazy people. वो खाने का भी हक नहीं है. Oh, God has given us all different gifts. Those gifts are to be exercised. Those gifts are to be invested. And finally, it talks about judgment. Judgment will be not only God. God will judge करेगा नहीं आप. Your family will judge, your brother will judge, your sister will judge, your parents will judge. Praise the Lord. Little more louder will say, praise the Lord. 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 Our God is so faithful to us, in spite of all our weaknesses and shortcomings. He never fails to love us. He never fails to be faithful to us. And we are thankful to God for everything. This is the day that the Lord has made, and we all come together here to worship Him and acknowledge His faithfulness, His loving kindness to all of us. And it is very important part of our service that we listen to the Word of Lord, because the Word of God never changes. World may change, people may change, time may change, our situations may change, but the Word of God never changes, and this will remain forever and forever, for to teach us, to give us lessons, and to help us and to motivate us. We'll listen to the Word of the Lord today. So please be seated. Most of you must be tired now, because this is a very high time for us to sleep now, isn't it? 2, 3, 4 p.m. very dangerous time. ये वो खतरनाक समय है सोने के लिए ना. कोई लोग यहाँ आके गलती हो गया सोच भी रहा होगा, नहीं ऐसा तो नहीं होना चाहिए. गलती से आ गया सोने से तीखता रिग्रेट हो रहा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए. And I believe that you will not go back empty hands and empty minds and empty hearts after having heard the message of the Lord today. और परमेश्वर का वचन सुन के आपको अच्छा लगेगा और कुछ सीखे जाएंगे आप लोग. ये प्रभु के वचन कहते हैं. And I am humbled to share the word of the Lord today with all of you. And I'm going to share from the book of Matthew chapter 25. And this is the last parable that Jesus Christ shared with His disciples. A parable is a short stories. Jesus Christ used many parables. बाइबल में भी अध्याय में बोला है, प्रभु यीशु जब आएगा, He will open His mouth with parables, ऐसा लिखा है. And Jesus Christ fulfilled in His ministry. इसलिए जीसस क्राइस्ट जो कुछ बहुत कहानी के द्वारा बताया है बहुत लोगों को. And parable is Greek word. It comes from parabole, means setting behind, set aside, ऐसा करके कुछ बताने के लिए कुछ एग्जाम्पल लाना, कुछ कहानी होना, उसके द्वारा हमें उसका जो इंटेंशन है, उसका मैसेज को पहुंचाना, उसको पैराबल बोलते हैं. पैराबल में भी अलग अलग चीज़ें, सिमिली है, ये है, अलग अलग पैराबल्स होते हैं, शॉर्ट पैराबल्स होते हैं. आज हम एक लॉन्ग पैराबल्स यीशु मसीह ने उसके चेलाओं लोगों को बताया, और ये मैथ्यू का लास्ट पैराबल है. ये पैराबल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बिफोर ही लेफ्ट, बिफोर ही वाज किल्ड, before he was resurrected, before he came back in a Pentecost day, उसको आज हम आप सबको बताएंगे. इट इज कॉल्ड द पैराबल ऑफ टैलेंट्स. और यहाँ अलग अलग कोई वचन में अलग अलग लिखा है, वर्ष में अलग अलग लिखा है. यहाँ में ये पैराबल ऑफ ये यहाँ में लिखा है अलग से मैथ्यू में, मैथ्यू चैप्टर 25 में पैराबल ऑफ 3 सर्वेंट्स ऐसा लिखा है यहाँ ये बाइबल में ना, छोटा बाइबल. बाइबल का भी अलग अलग वर्सन होता है, जैसे अलग वर्सन. आई एम यूजिंग KJV, किंग जेम्स वर्सन, ओरिजिनल वर्सन घर में है, और ये मेरा अलग पर्सनल कॉपी है. यहाँ हम यूज करते हैं चर्च में, बिकॉज वी आर ऑल यूजिंग दिस वर्सन. दिस इज अ न्यू लिविंग ट्रांसलेशन वर्सन. दिस वन ऑफ द इजीएस्ट वर्सन, अंडरस्टैंडेबल वर्सन फॉर स्टूडेंट्स स्पेशली. दिस बाइबल इज मेड फॉर स्टूडेंट्स अप टू class 12 level.
ओके, क्लास 12 लेवल तक के लिए है। अगर आप उसको जो बीए कर लिए एमए पढ़ने से और समझ जाएगा। देयर इज नथिंग, नो कंफ्यूजन एट ऑल इन दिस बाइबल। ऐसा सिंपल सा है, वेरी मीनिंगफुल बाइबल। इसलिए हम चुन चुन के ये बाइबल को ये चर्च के लिए लिया था। और सो इसको आप लोग पढ़, न्यू लिविंग ट्रांसलेशन वर्जन है ये। और दूसरा में लिखा है ये टैलेंट, द पैराबल ऑफ टैलेंट। यहाँ में टैलेंट को यहाँ सिल्वर बैग लिखा है, किसी में गोल्ड बैग लिखा है बाइबल में, अमेरिकन वर्जन में। किसी में ये 5 टैलेंट्स लिखा है, अलग अलग लिखा है, बट मीनिंग इज सेम। द कंटेंट इज सेम, मीनिंग इज सेम, द इंटेंशन इज सेम। ऐसा है, लाइक अलग अलग मेडिसिन में ब्रांड कंपनी होता है ना, ऐसे टाइप का, सेम काम सेम करेगा, ऐसे टाइप का है। तो यीशु मसीह का ये पैराबल को लेके आज हम आप सबको बताएंगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पैराबल। ये आप लोग वचन देख रहे हैं ना, पेज नंबर 756 और निकालिए आप लोग। I am not going to preach, I am going to teach you, okay? This is going to be a Bible lesson today, Bible study today. हम लोग एक नया ये पॉलिसी बनाया है आजकल, टीच मोर प्रीच लेस, ऐसा है, ऐसा हम लोग, एंड लेस एक्सपेंडिचर मोर रिजल्ट। कम एक्सपेंस में हम लोग ज़्यादा माने पैदा होना चाहिए, ऐसा करके हम लोग आज का पॉलिसी बना रहा है। ये कहानी है एक, शुरू में ऐसा लिखा, बीच में जो बहन जो पढ़ रही है आज, अगेन द किंगडम ऑफ हेवन कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय द स्टोरी ऑफ अ मैन गोइंग ऑन अ लॉन्ग ट्रिप। ही कॉल्ड टुगेदर हिज सर्वेंट्स एंड entrusted his money to them while he was gone. He gave 5 bags of silver to one, 2 bags of silver to the another, and 1 bag of silver to the last, dividing it in proportion to their abilities. He then left on his trip. एक मालिक जो, मास्टर जो क्या किया है, बहुत लंबा सफर के लिए, लॉन्ग जर्नी ट्रिप के लिए कहीं चला गया। जाने से पहले क्या किया है, ही गेव हिज सर्वेंट्स, जो लोग उसके लिए अच्छा रिलायबल पीपल, जिसको देने का लायक है, ऐसे लोग 3 लोगों को चुना है। देन ही गेव 5 टैलेंट्स टू द फर्स्ट पर्सन, एंड सेकंड पर्सन 2 टैलेंट्स, देन थर्ड पर्सन 1 टैलेंट। मीन्स 5 bags ऑफ सिल्वर, 2 bags ऑफ सिल्वर एंड 1 bag ऑफ सिल्वर, सबको दे दिया। उन लोगों को बोला, मैं जा रहा हूं, आप लोग ये लेके क्या करना है, और आप लोग उसको चलाते रहिए, और आप लोग के लिए काम आएंगे। ऐसा करके सबको बांट के विथ देयर एबिलिटीज में दिया है सबको। देने के बाद व्हाट हैपेंड, ही केम बैक, 2 दिन के बाद। ये कहानी सुना है आप लोग पैराबल्स को? नहीं सुना है ना? ये यीशु मसीह का असली कहानी है ये ना, ऐसा होगा बाद में। यीशु मसीह का कहानी बताया वाला, दिस स्टोरी फ्रॉम हिज ओन माउथ, ये किसी ने नहीं बनाया है, प्रभु यीशु ने बनाया है। ये वचन जो आप लोग ना दूसरा स्क्रिप्चर को लेके कंपेयर मत करो। डोंट से दैट ऑल दिस स्क्रिप्चर सेम, नो। वो स्क्रिप्चर कहानी लिखने वाला लोग कौन है, करने वाला कौन है, पता ही नहीं, बहुत लोगों को, कोई देखा भी नहीं उसको। बट ये वचन ऐसा नहीं है, ये जो लिखा है प्रभु को देखा है सामने से। मैथ्यू who wrote this, he saw from his own eye. He was with Jesus Christ, dined with Jesus Christ, ate with Jesus Christ, he died for Jesus Christ. वो इंसान लिखा यीशु मसीह को देखा है। लेकिन दूसरा किताब लोग ऐसा नहीं, पता ही नहीं है, देखा ही नहीं है इसको ना। आज को महात्मा गांधी का बारे लिखेगा, किताब मिला के लिखेगा, लेकिन देखा ही नहीं है महात्मा गांधी को। वो सच्चा होगा नहीं ना। वो सुन के लिखा वाला, ये सुन के लिखा नहीं, देख के लिखा वाला ये वचन जो ना, यीशु मसीह का बुक से निकाला वाला ये वचन जो, इट्स वेरी ट्रूथ। इसलिए मैथ्यू ने इसको जो सुना है वो लिखा है। और देन रेस में लिखा थे मास्टर केम बैक। देने के बाद क्या आता है, उसके बाद नेक्स्ट में लिखा है, द सर्वेंट टू रिसीव द 5 bags ऑफ सिल्वर बैग्स टू इन्वेस्ट एंड मनी एंड अर्न 5 more। तो क्या किया है, ये टैलेंट असली वर्ष, दूसरा ओरिजिनल वर्ष में टैलेंट्स लिखा है,
1 talent is equal to 6,000 dinar. दिनारिस बोलता है वो इजराइल में ना, वो समय में पैलेस्टाइन। अभी तक मेरा पास है इजराइल दिनार ना, इजराइल में दिनार चलता है, पैसा ना दिनार। ये 1 talent is equal to 6,000 दिनारिस अकॉर्डिंग टू मैथ्यू का हिसाब से। तो 5 talent is equal to 6 into 30,000 दिनारिस मीन्स 16 years का ये वेजेस एक इंसान को दिया है। वो पैसा को लेके 5 bags ऑफ सिल्वर लेने का 16 years आपको काम करने जरूरी नहीं है। इतना दाम दिया उसको ना, इतना वैल्यू दिया है। एक को 2 talents, एक को 1 talent, ऐसा करके दिया है। जैसे ताजमहल बनाने वाला को इतना पैसा दिया है कि काम करने जरूरी नहीं है। उसको हिंदी में हाथ काट दिया बोलता है ना, हम चिया मतेतंग लापहा पकड़, समझे ना आप लोग। हम लोग असली में सुनाता है हाथ काट दिया, जितना काम किया 20,000 लेबर्स को एक बुला कर काटेगा कोई, ऐसा तो नहीं हुआ है ना। एक्चुअली इट इज, वो भी एक शॉर्ट पैराबल, वो भी ना हाथ काटा नहीं है, इतना पैसा दे दिया कि काम करने जरूरी नहीं, किसी का पेट में लात मारना ये मतलब नहीं असली का मार दिया, नहीं, उसका छीन लिया कुछ खाने पीने वाला, ऐसे टाइप का। 9-2-11 होना, व्याकरण पढ़ा है ना आप लोग, 9-2-11 होना, ये मतलब 9-2-11 मिला के ऐसा नहीं है, भाग जाना है ऐसा ना तो ऐसा करके डिनर दिया, सबको दिया। उसका बाद जिसको 5 बैग सिल्वर दिया वो 5 बैग कमाया, और जो 2 बैग दिया वो 2 बैग कमाया, और जिसको 1 बैग दिया था वो कमाया सीधा ले गया जमीन के अंदर गाड़ के रख दिया, कुछ किया नहीं है, मेहनत किया नहीं है। सब लोग अपना अपना जो मिला है सब किया है, लेकिन जो एक बैग सिल्वर मिला है वो जमीन में लेके खोद के गधा बना के अंदर में रख दिया। उसके बाद क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, आफ्टर लॉन्ग टाइम देयर मास्टर रिटर्न फ्रॉम हिज ट्रिप एंड कॉल्ड देम टू गिव एन अकाउंट ऑफ हाउ दे हैड यूज्ड हिज मनी। उसके बाद पैसा देने में सबको बुलाया, तीनों को, चलिए आप लोग अपना अपना हिसाब दीजिए क्या क्या हुआ है, टेल मी द स्टोरी व्हाट हैव यू डन विद द मनी। तो नीचे में लिखा है, एक इंसान जो पहला वाला जो बोला है, मास्टर यू गेव मी 5 bags ऑफ सिल्वर एंड आई हैव इनकम्ड, आई हैव अर्नड 5 more bags ऑफ सिल्वर। उसको क्या करेगा, तो मालिक क्या बोला है, वो उसका बाद वेरी गुड बोला, माय गुड सर्वेंट, बहुत अच्छा किया आप, इतना हम उम्मीद नहीं था, आप इतना ज्यादा कर दिया, इसलिए वो क्या किया, चलो पार्टी मनाओ, सेलिब्रेट, आज मेरे साथ बैठो आप, इसलिए आपको और देगा, ऐसा बोला। और दूसरा वाला, सेकंड वाला जो बोला है, क्या बोला है, आपने पैसा दिया 2 bags ऑफ सिल्वर, मैंने भी 2 बैग और कमाया, और ज्यादा कमाया भी था होगा, बस 2 बैग दिखाया वो लोग ना, 2 बैग हम भी कमाए, और भी खुशी हो गया। उसका बाद नीचे में क्या लिखा है, और मास्टर तो क्या बोला था, मास्टर वॉज फुल ऑफ प्रेज, क्या बोला, वेल डन, बहुत अच्छा किया आप, वेल डन। ये सुनने के लिए कितना मजा लगता है ना, अगर कोई आपको ऐसा बोलेगा, आप खुशी नहीं होगा क्या? जब आप घर में आएगा, कुछ अच्छा काम किया, आपको पापा बोलेगा, बेटी आई एम प्राउड ऑफ यू, आई एम सो हैप्पी फॉर यू, आपको अच्छा नहीं लगेगा? बेटी को अच्छा लगेगा ना, कितना खुशी होगा ना। मेरा बेटा ड्राइंग करता है ना, उसको ड्राइंग तो देखने में इतना ठीक नहीं है, फिर भी हम बोलते हैं वाह इतना सुंदर बनाया, आप खुद बनाया क्या, वो खुशी होता है उसमें, बेटा जो पापा अब और बनाएगा और बनाएगा। हम सोच रहे कितना डैमेज हो रहा है पता नहीं और बनाएगा, बट ही इज हैप्पी व्हेन आई प्रेज हिम, यू नो, बहुत कुछ। उसका बाद कुछ या मोबाइल में भी निकाल कर कुछ दिखाता है ना, वाह बोलने से और अलग दिखाने दिल like that, he was so happy। उसका बाद क्या, well done my good and faithful servant, वाह good and faithful servant, ये तारीफ सुनो ना आप, एक मास्टर जो तारीफ को सुनो ना, the way of the level of ना
द डिग्री ऑफ प्रेज, बस वेरी गुड, अच्छा है, इतना सिर्फ नहीं बोला है, वेल डन माई फेथफुल सर्वेंट, गुड। उसका और क्या किया है बोलने का बाद, यू हैव बीन फेथफुल इन हैंडलिंग दिस स्मॉल अमाउंट, नाउ आई विल गिव यू मेनी मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, लेट्स सेलिब्रेट टुगेदर। आपने इतना अच्छा काम किया जो हमने दिया, और आपको देगा हम, चलो एक साथ हम पार्टी करते हैं। कितना अच्छा बात है, सो गुड टू हियर दैट, सो इट साउंड सो गुड, यू नो। उसका बाद सेम बात सेकंड वाला को भी वही बोला है, फेथफुल सर्वेंट, आपने बहुत अच्छा किया है। उसका बाद लास्ट वाला क्या बोला, यू नो, उसका बाद देन वर्स 24 यू सी, देन द सर्वेंट विद one bag of silver came and said, Master, I knew you were a herdsman, harvesting crops you did not plant and gardening crops you did not cultivate. I was afraid I would lose your money, so I hid it in the earth. Look, here is your money back. थर्ड वाला सर्वेंट को क्या किया है, मालिक आप हमको पता है आप थोड़ा खतरनाक आदमी है, हम सोचते हैं आपका पैसा का मिसयूज हो जाएगा, इसलिए हम किया ही नहीं, इसलिए हम मट्टी का अंदर में गड्ढा बना कर रखा है, देखो अब ला दिया है आपका बैग को। आप ऐसा इंसान है जहाँ बागान नहीं बना तो वहाँ सब्जी उठाता है बोल के ना, जहाँ गार्डन नहीं किया वहाँ से आप कुछ मांगता है, इसलिए हम डर लग गया था, ऐसा बोल दिया। बोलने का बाद द मास्टर रिप्लाइड, यू विकेट एंड लेजी सर्वेंट। सुनने अच्छा लग रहा है क्या आपको ना, विकेट एकदम बेकार का इंसान आप, लेजी सुस्ती आदमी ना। उसके बाद क्या किया है लास्ट में, देन ही ऑर्डर्ड, टेक द मनी फ्रॉम दिस सर्वेंट एंड गिव इट टू द वन विद द 10 bags of silver। पैसा को ले लो, उसका ये पैसा को जो ज्यादा किया उसको ही दे दो, ऐसा चिन्ह के दे दी। उसका बाद क्या बोला है, उसका बाद, to those who use well what they are given, even more will be given and they will have an abundance, but from those who are nothing, even what little they have will be taken away। जो ज्यादा है अच्छा काम के लिए करता है उसको और देगा, जो तोड़ा होके भी नहीं करता है उसको वो छीन भी लेगा, बोला इसी छीन लेगा, जो होते हुए तोड़ा होने से उसको भी छीन लेगा, जो यूज सही नहीं करता है। उसके बाद क्या बोला है, नाउ थ्रो दिस यूजलेस सर्वेंट, जो काम नहीं किया वाला सर्वेंट को फेंक दो into the utter darkness where there will be weeping and gnashing of teeth। इसमें देखता है कि जो लेजी है, जो एक्सरसाइज नहीं करता है, जो दिया है उसको सही इस्तेमाल नहीं करता है, देयर इज नो प्लेस फॉर द सर्वाइवल इन दिस अर्थ। मेहनत का बात कर रहा है अभी ना, मेहनत का, जो मेहनत करते हैं, जो प्रॉस्परस होता है, इवन गॉड इज ऑल्सो हैप्पी विद देम। गॉड इज नॉट हैप्पी विद द लेजी पीपल। इसलिए पॉल बोला है, इन द फैमिली डोंट गिव फूड टू द लेजी पीपल, वो खाने का भी हक नहीं है उसको। कितना खतरनाक बात है ना। और ज्यादा खाने वाला को भी बोला है, ग्लूटन सेवन हो उसको तो पाप माना जाता है, ज्यादा खाने वाला को भी। they sin, they eat and suffer, you know इसलिए that's why I want to tell you is about life। God has given us all different gifts, those gifts are to be exercised, those gifts are to be invested। आपको कुछ टैलेंट दिया है, कुछ भी दिया है, and this is nothing to do with money only, this is all about your life, gift of life।
with abilities, सबको दिया है. And it talks about investment and growth. इन्वेस्ट कैसा करना है आप अपना आप को. It doesn't matter only you invest money only. You invest time. You invest friendship. You invest fellowship. You invest oneness. You invest singing. You invest dancing. जब तक आप दूसरा को खुशी नहीं देगा, आप खुशी होगा ही नहीं. कोई लोग सोचता है हम अकेला होने से ही ठीक है. नो, मरने भी सोचेगा आप ना ज्यादा अकेला होगा तो. अकेला हो कि कोई लोग सोचेगा हमको कोई प्यार करता नहीं. आप कुछ करेगा क्या, कौन करेगा आपको? कोई करेगा? उस दिन मेरा भाई जो कभी कभी बहुत सही बोलते हैं, हम बोला था आजकल दोस्त लोग भी घर नहीं आता है, हम ऐसा बोला है ना. दोस्त लोग आने का बात चलो, आप भी तो जाना पड़ेगा ना. आप आने से ना दूसरा भी आएगा जाएगा. आगे ऐसा होता है ना. अच्छा आजकल आप फोन भी करता नहीं, बोल आराम से आप भी तो करो ना कम से कम, तब ना आपको करेगा कोई. That's why it's all about investment and growth in life. Unless you invest your talent and you invest your life to someone, you will never have growth. You will die. People will say you crazy fellow, go away. बोल देगा आपको. That's why Jesus Christ talks about the emphasis on responsibility. Everyone is given same responsibility, different responsibility. किसी को क्या देखना, क्या करना है, कैसे करना है, अलग अलग गिफ्ट दिया गया है. तो it talks about the responsibilities. And finally it talks about judgment. Judgment will be not only God. God सिर्फ जज करेगा नहीं आपको. Your family will judge, your brother will judge, your sister will judge, your parents will judge, society will judge, everyone will judge as long as you live in this earth. आप मरने का सिर्फ बाद में जज करेगा ऐसा सोचता है कि आप? नो, जजमेंट तो होते रहेगा आपको. लाइक ब्रदर भाई आजाद इज हियर. अब यहां से ये पढ़ के जाएगा, बाद में क्या करे क्या नहीं करे. योर पेरेंट्स और फैमिली विल जज यू. आजाद क्या हो गया, क्या नहीं हो गया, कैसे हो गया, क्या सोचा था, अच्छा हो गया, अच्छा नहीं हुआ. दे विल जज यू. दे विल जज यू. आप लोगों को भी जज करेगा. वह इतना टैलेंट अच्छा था, हम कभी नहीं सोचा था ये लड़की ऐसा होगा ना. हम लोग बोलेगा, वो तो जज करेगा. ये भाई चौबिन भाई है अभी, बाद में ये मेंटेन करके पतला. अया चौबिन को पतला हुआ नहीं सोचा था. पीपल विल लुक एट यू फ्रॉम डिफरेंट एंगल. ऑल रिस्पॉन्सिबल, हर किसी का जजमेंट होगा. बट दिस जजमेंट इज मोर देन योर लाइफ. जजमेंट ऑन योर लाइफ एंड एंडिंग में जज करेगा सबको. When you die, before you die, people will judge you. This is very important to see our life, what God has given us, this beautiful life. It talks about the stewardship and resources. Stewardship, resources कैसा आपको क्या क्या दिया है. Some of your parents are good, some are not good. Some parents are rich, some parents are not rich. According to that, you will judge. In the end, उसके बाद ये डिलीजेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. रेस्पॉन्सिबिलिटी, आप यहाँ पढ़ने आया, लिखने आया, सब कुछ अपना अपना काम के लिए आया है. आई एम ऑल्सो स्टडिंग नाउ. आई हैव टू कंप्लीट माई डिग्री ऑन टाइम. जो हमको समय दिया, आई एम गिवन ओनली 2 years. विद इन अप्रैल 2026 आई मस्ट फिनिश ऑल माई स्टडीज एंड रिजॉइन. इसलिए रेस्पॉन्सिबिलिटी जो हमको दिया है, आई मस्ट बी वेरी डिलीजेंट टू दैट. ये वेरी लिमिटेड टाइम. इसलिए dear friends, let's understand our responsibility. You all are given responsibility. Some are given 5 bags of silver, some are given 2 bags, some are given 1. If you take money and sleep all the day, no, money will not grow by itself. Money begets money, love begets love. ऐसा होता है ना. That's why, my dear brothers and sisters, from this parable I want to tell you, always be stewardship of your resources. यहाँ जो बैठ रहा है, कर रहा है, उसको अच्छा से हम लोग करना चाहिए, ये पैराबल के हिसाब से ना.
And when you are given, you are also expected. हम पहले भी यहाँ एक बार बोल चुका है, पेरेंट्स को जो बाय बाय आप लोग को पैसा दे रहा है, हमको दे रहा है, काउंसिल हमको सपोर्ट करता है, दिस इज इन्वेस्टमेंट. उसको ऐसे फ्री है मत सोचो. दिस इन्वेस्टमेंट. देन यू विल इन्वेस्ट बैक to your children, to your parents when they are old. God never wants us to be failure. God wants us to see good results, fruitful in our life, in growth in our life. अब ग्रोथ नहीं होगा तो होगा नहीं होगा ना. अगर मैंने कोई बच्चा जन्म दिया, देख 1 महीना बाद ग्रोथ नहीं हो रहा, 2 महीना बाद ग्रोथ नहीं हो रहा, 4 महीना बाद ग्रोथ नहीं हो रहा, 10 महीना बाद भी थोड़ा सा आ भी नहीं कर, अच्छा लगेगा आपको वो बच्चा जो. इससे और होलिस्टिक ग्रोथ होना चाहिए आपको ना, पढ़ाई में भी, सब कुछ में. मान लो आपका किसी का बच्चा, मेरा जन्म हो गया, उसका हाथ सिर्फ ग्रोथ हो रहा है उसका ना. ला के ला सो संग दूं तो लपा ला संग, अच्छा लगेगा देखने के लिए. अगर आप ग्रोथ हो रहा है, माथा सिर्फ ग्रोथ हो रहा है, बड़ा होते है बदन कुछ नहीं हो रहा, दुम्पम पुत्ते अच्छा लगेगा. इट टॉक्स अबाउट रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इक्विवेलेंट ग्रोथ. जितना दिया है उतना काम करना पड़ेगा ना आपको, जितना दिया उतना ही कमाना पड़ेगा ना आपको. इसलिए दिस इज what God has given us, God also expect us from them. अगर सुंदर बनाया है उसका भी वजह होगा ना. किसी को पैसा ज़्यादा दिया है, वजह तो होगा, रीजन तो होगा. God will not simply blindly give people like that. If God has given us talent, like our Kako brother, he sings, he's gift of singing. अगर वो सिंगिंग को नहीं गा के रूम में बैठते अपना गाते रहेगा, खुशी नहीं होगा. God wants him to expose here and sing that bring joyful hearts to the people. That is called the exercise of the responsibility. Through that, he will have a holistic growth. Otherwise, रूम में गाते रहेगा, मुंह बड़ा होते रहे, होगा ही नहीं, कुछ ग्रोथ होगा ही नहीं, सुने वाला भी नहीं होगा. That's why, no, what God wants us is, God expects us that every one of us should work and grow. Study and grow, sing and grow, pray and grow, give and grow, run and grow, exercise and grow. ऐसा होना चाहिए. Then only तब क्या बोलेगा God जब आएगा, oh well done my servant, I'm happy for you, let's celebrate together. ऐसा होना पड़ा. जब यहाँ से वापस आएगा, माँ पिताजी लोग वहाँ आकर, oh my daughter welcome back, I'm happy for you, let's celebrate, घर में आज पार्टी करेगा. ऐसा होना चाहिए आपका काम काज में भी. And finally, the final word is, लास्ट में जो एक सर्वेंट है जो काम नहीं किया, लेजी किया है, it is very dangerous to neglect the growth. वो नेग्लेक्ट किया है. जो गिफ्ट दिया है, कुछ किया नहीं, कुछ करेगा ही नहीं, ऐसे रहने दो उसको. आराम से आके बोल देते हैं हम तो कुछ किया नहीं, आप कुछ करने से आप कुछ भी कर सकते हैं हमको बोल के, उल्टा ना. मिस यूज ऑफ द गिफ्ट, नॉट यूजिंग द गिफ्ट. इन्वेस्टमेंट नहीं किया, ग्रोथ नहीं किया, ही फेल्ड टू डू दैट, देन ही वाज फनिश्ड. उसका छीन लिया, उसको दूसरा को दे दी. व्हेन डेविड उन लोग टैबरनेकल को लाने के बाद उन लोग रखने का जगह नहीं है, बोल किसी का घर में रख दिया 3 महीना के लिए. टैबरनेकल ये लो को ना वो लोग बुके ले गया तो 10 कमांडमेंट को. तब जिस घर में रखा था वो घर में इतना ब्लेसिंग आ गया, आप सोच भी नहीं सकते, इतना ब्लेसिंग आ गया. दैट्स कॉल्ड ब्लेसिंग ऑफ गॉड, एक्सरसाइज ऑफ द ब्लेसिंग्स. जो प्रभु को समय देता है, प्रभु के लिए काम करता है, ग्रोथ होता है, गॉड गिव्स. उसके बाद जो आप कर रहे हो उससे भी डबल देगा बोला है.
So it is the right time that we work hard. What God has given us, doing our responsibility, carrying up our responsibilities, and expect the result like God. मेहनत किया है, उसका फल मिलेगा. नहीं किया है, सजा मिलेगा. So let's open our hearts and minds to find out what God has given us. Let's grow together. Spiritual growth, holistic growth with the help of the Holy Spirit. I pray that God will bless all of you who are in New Delhi, who are studying here. All of us, God will help us to grow more. And God will help us to live up with the resources He has given us. And He will give us more if we'll continue to do and serve Him. May God bless all of us. Thank you so much.